I want to thank God once again this evening for the privilege of being able to be part of this meeting and also to be able to share God's word with you. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस सभा के हम सहभागी हो सके और इस मीटिंग में सहभागी हो सके। It's also a joy that Brother Biju and I would be working together, though we are so far apart from one another. Our prayer is that God will help us to work together and His name would be glorified. ये भी हर्ष की विषय है कि हम और भाई बिजू दोनों अलग-अलग स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मिलकर बांटेंगे। As I mentioned yesterday, in these two evening devotionals, I want to look at characters in the New Testament that we don't think about too often. मैं पिछले विगत 2 दिनों से जो बातें कर रहा हूँ, उसमें मैं ये चाह रहा हूँ हम ऐसे व्यक्ति विशेषों को देखें जिनके बारे में ज्यादा उल्लेख बाइबल में नहीं किया गया है। Yesterday we looked at Ananias. और हमने कल जो है अनन्यास के विषय में देखा था। And tonight we want to look at a man by the name of Epaphras. और इप्रफास करके व्यक्ति है, उसके विषय में हम देखेंगे। So I'd like you to open your Bible to the book of Colossians this evening. और कुलुस्सियों की पत्री मैं चाहता हूं कि आप खोलें। And as we open our Bible to the book of Colossians, और जब हम कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ते हैं, देखते हैं, we want to remind ourselves of our theme in this IEM convention. तो हम वो उस थीम को रिमाइंड करना चाहते, याद दिलाना चाहते जो IEM कन्वेंशन का है। Our theme is to stand firm and to strive for the gospel. और प्रभु में दृढ़ रहो और सुसमाचार के लिए बढ़ते रहो। How can I stand firm and strive for the gospel? और मैं कैसे प्रगतिशील हो सकता हूँ सुसमाचार के लिए प्रभु में स्थिर रहते हुए। Tonight, as we look at the life of Epaphras, यदि हम अपोस्तल के जीवन को देखें, प्रेरितों के, as we look at the life of Epaphras, not apostles, as we look at the life of Epaphras tonight, यदि हम एपफ्रस के जीवन को आज देखें तो I want to present to you 6 lessons that I learned from Epaphras' life that will help us to stand firm and strive for the gospel. मैं 6 विषयों को पाठ के रूप में आपको सिखाना चाहूंगा जो हमको दृढ़ करेगा और सुसमाचार के लिए हमको आगे बढ़ाएगा। So as we turn in our Bible to the book of Colossians, इसलिए कोलोसियों की पत्री में आए मेरे साथ। let's begin to read at verse 7 of chapter 1. और जो है पहले आयत का पहले अध्याय का 7वां आयत पढ़े। This is what Paul says. वहां पौलुस क्या कहता है? He says, you learned it from Epaphras. और उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई। Please keep this in mind that the church in Colossae was established by Epaphras. और ये चीज मन में बैठा लें कि कलीसिया जो कोलोसियों की थी, उसके संस्थापक जो थे वो एपफ्रास थे। God used this man called Epaphras to establish a body of believers at Colossae. और कोलोसियों में एक परमेश्वर के लोगों के समूह को इकट्ठा करने में परमेश्वर ने उसे मदद किया। And when the church in Colossae was going through difficulty because of false teachers, और जो है झूठे शिक्षकों के चलते जब एक विषम स्थिति से गुजरने लगी कलीसिया कोलोसिया की, Epaphras goes to the apostle Paul, तब इपफ्रास जो है पौलुस के पास जाता है, and Paul writes the book of Colossians. पौलुस जो है कोलोसियों की पत्री को लेखन करता है। So it's important for us to keep that in mind, that Epaphras was the instrument, the servant that God used in the establishment of the church at Colossae. तो ये बात दिमाग में बैठी रहे कि जो है इपफ्रास को जो है इस्तेमाल किया था परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना करने में कोलोसियों में। What can we learn from this man called Epaphras? और इपफ्रास से हम क्या-क्या चीजें सीख सकते हैं? Like I said, I want to teach you 6 lessons. जैसा मैंने बताया कि 6 बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। The first lesson is this. पहला ये है, Men who stand firm, women who strive for the gospel, और जो व्यक्ति दृढ़ बना रहेगा और जो महिला जो सुसमाचार के लिए कार्य करेगी, have to have a passion for Jesus Christ. उनके अंदर मसीह यीशु के लिए एक जुनून होना चाहिए।
Lesson number 1, Epaphras is a man of passion for Jesus Christ. इपफ्रास मसीह यीशु के लिए एक जुनून से भरा हुआ व्यक्ति था। I want you to write down 3 words in your notes this evening as you think about a man of passion. और जो है जुनून से भरे हुए या दीवानगी से भरे हुए व्यक्ति के बारे में जब आप सोचेंगे तो 3 बातें आप लिखें, मैं चाहता हूं। Number 1, पहला, men of passion are doulos of Jesus Christ or bond servants of Jesus Christ. और जो जुनून या दीवानगी से भरा हुआ व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। वो पैदाइश Look at Colossians chapter 1 verse 7. और जो है 1 के 7 को हम देखेंगे। Paul says, you learnt it from Epaphras, our dear fellow servant. उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई। Look at Colossians chapter 4 and verse 12. और 4 के 12 में जरा पढ़ के देखें। Epaphras, who is one of you and a bond servant of Jesus Christ. इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है। So as Paul is writing about this man called Epaphras, he says that this is a bond servant. This is a doulos of Jesus Christ. और यहाँ पर वो कह रहा है कि ये प्रभु का एक जन्म से दास व्यक्ति है, प्रभु का जो है यीशु मसीह। The second word that I want you to have in your notes as we look at Epaphras as a man of passion is that Epaphras was not only a doulos of Jesus Christ, he was a dependable servant of God. और वो जो है भरोसेमंद प्रभु का सेवक भी है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह का सेवक है बल्कि भरोसेमंद भी है। Again, look at Colossians chapter 1 verse 7. और 1 के 7 में फिर से हम देखेंगे। You learnt it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Jesus Christ. और इपफ्रास के बारे में वहां उल्लेख किया गया है कि उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। So this is a doulos of Jesus Christ, a bond servant of Jesus Christ. ये जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म से सेवक है। This is a dependable man. और ये एक भरोसेमंद व्यक्ति है। And most important, this is a man who has a desire for those who are lost without Jesus Christ. और उसके अंदर उनके प्रति वो चाह है जो लोग खोए हुए हैं मसीह यीशु से अनभिज्ञ रहकर। So as you talk about Epaphras as a man of passion, यदि एपफ्रास एक जुनून से भरे हुए व्यक्ति के बारे में यदि बोले तो lesson 1, he is a doulos of Jesus Christ. पहला वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। Lesson 2, he is a dependable man. वो भरोसेमंद व्यक्ति है। And lesson number 3, he has a desire for the lost. और वो खोए हुओं की चाहत रखता है, उसके दिल में चाहत है खोए हुओं के प्रति। Look at Colossians chapter 4 and verse 13. कोलोसियों 4 के 13 में देखें। The Bible says, I vouch for Epaphras that he is working hard for you in Colossae and for those in Laodicea and Hierapolis. और मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लुदोकिया और हिएरापोलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। So Paul is saying that this man called Epaphras, he has a burden for the people in Colossae. तो जो कोलोसियों के लोगों के प्रति एक बोझ रखने वाला व्यक्ति है एपफ्रास। He has a burden for people in Laodicea. और लुदोकिया के लोगों के लिए भी उसके लिए बोझ है। And he's got a burden in his heart for people in Hierapolis as well. और हिरापुलिस वालों के लिए भी उसके दिल में वही बोझ है। Now, most Bible commentators will tell us ज्यादातर बाइबल की व्याख्यान करने वाले लोग हमें बताएंगे that when Paul was in Ephesus for 2 years, जब पौलुस एफेसस में 2 साल के लिए था, and that's found in Acts chapter 19, और जो प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में वो हम देखते हैं, when Paul was there for 2 years and preached and taught the word of God, और जब पौलुस वहां रहकर प्रचार किया और परमेश्वर के वचन को वहां लाया, Epaphras possibly accepted Jesus Christ through that ministry.
और एपफ्रोस वहां पर उस समाचार के द्वारा जो है सेवकाई के द्वारा प्रभु को स्वीकारा उद्धारकर्ता के रूप में। And as soon as he accepted Jesus Christ, जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिया, his desire was to take Jesus back to Colossae उसकी अंदर तीव्र इच्छा ये हुई कि मैं कोलोसियों से वहां ये मैं इस यीशु को लेके जाऊं, to go to the people of Hierapolis, और हेरापुलिस के लोगों के पास जाऊं, to go to the people of Laodicea, और लिदोकिया के लोगों के पास जाऊं, and to share with them the good news of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को उनसे बांटूं। You see, Epaphras could have said, "Oh, this is wonderful. I'm enjoying Paul's teaching. Let me just stay here in Ephesus and enjoy teaching more and more. I want to grow in my walk of faith." But no. Epaphras is a man whose heart is filled with passion for people that do not know Jesus Christ, and he wants to go back to them with the good news of एपफ्रोस की Jesus सोच Christ. ऐसी नहीं बनी ये सोचते हुए कि पौलुस के सानिध्य मुझे मिल रहा है, कितनी अच्छी शिक्षाएं मिल रही है, अपने विश्वास में मैं और बढ़ता जाऊं, यही अच्छा मौका है, यहाँ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो जो लोग मसीह यीशु को नहीं जाने हैं उनके प्रति उसके दिल में बोझ बढ़ता रहा, और वो उस और जो है आत्मसात करता गया कि मैं इसको कैसे कर सकूं। So the first lesson I want you to take away this evening is that men and women who will stand firm and strive for the gospel need to have a passion in their heart for those that do not know Jesus Christ as Lord and Savior. तो ये पाठ में देना चाहूंगा कि जो लोग मसीह यीशु में दृढ़ हैं और जो है सुसमाचार के लिए जूझना चाहते हैं, उनको चाहिए है कि उनका हृदय वो जुनून से भरे रहे मसीह यीशु को वहां तक पहुंचाने में जहां लोग नहीं जाने। Epaphras was a doulos of Jesus Christ. और जो है एपफ्रोस जो है वो एक परमेश्वर का सेवक था, He was a dependable man. वो विश्वास योग्य व्यक्ति था, He had a desire for the lost. तो प्रभु के लिए दिल जीतने की चाहत रखता था, A man with passion in his soul for Jesus Christ. और जो है आत्माओं को जीतने का एक बड़ा बोझ उसके अंदर था मसीह Let me यीशु। share with you a story. मैं एक आपसे कहानी बताऊं, एक घटना। This is a true story of missions. ये मिशन की सही घटना है। It's a story told by a lady by the name of Christine Tinling. क्रिस्टीन टिनलिन करके महिला के द्वारा कही गई ये घटना है, बताई गई बात है। This was a story from the late 1800s in Fuzhou in China. और फुचाओ चाइना में जो है 18वीं सदी में जो है हुई एक घटना है। There was a leprosy mission hospital. वहां पर एक कोढ़ जो है का मिशन अस्पताल था, And there was a man who came into that hospital who had terrible leprosy. और एक व्यक्ति जो गंभीर कोढ़ से ग्रसित था वो वहां उस अस्पताल में आया, So terrible that maggots were falling out of his body. और उतना ज्यादा भयानक था कि उसके शरीर से मांस गिर रहे थे। When he came to the hospital, the people in that hospital, it was a Christian hospital, they cared for him, they loved him, and they treated him. और जब वो उस मसीही अस्पताल में पहुंचा मिशन के, तो वहां लोगों ने उस पर अटूट प्यार दिया और उसकी परवाह करी, उसकी देखरेख करना शुरू किया। And every day there was a chaplain who would go to that man and tell him, "Brother, Jesus loves you and he died on the cross of Calvary for you." और हर दिन वहां के चैplain या पासवान जाकर उनसे कहते थे कि भाई यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, उसने अपना प्राण आपके लिए दिया। In the beginning, the man would say, "How can anybody love me? Look at how horrible I look. I don't believe that Jesus loves me." शुरुआत में वो व्यक्ति ऐसा बोलता था कि मुझ जैसे व्यक्ति से कौन इतना प्यार कर सकता है और कैसे मैं विश्वास करूं कि ऐसा हो सकता है। But every day the missionary would come and tell him, "No, Jesus loves you so much that he died for you." और हर दिन वो मिशनरी वहां पहुंचकर उनसे बोलते थे कि प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है और उसने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया। One day the leper said, "Okay, if Jesus loves me, I want to accept him, but I don't have anything to give him. Look at me. I only have leprosy. What can I give Jesus?" और एक दिन वो ऐसा कहने लगा कि बाकी मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ
मान लिया कि वो मेरा प्रभु है, मेरे लिए मरा है, लेकिन मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवा कोड़ के जो मैं कोड़ी हूँ। That day, the chaplain led that man to Jesus Christ. वो पहला दिन था जब उस पासबान ने उसको प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लाया। And the man said, "Come into my heart, Jesus. और उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जाइए, I don't have anything to give you." मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। 2 years later, 2 साल बाद his leprosy was now terrible. Those days, leprosy was not curable. His leprosy was terrible. He could not move. His eyes had come out of the socket. He was really close to his death. और उन दिनों जो है लाइलाज बीमारी थी जो है कोढ़, और वो बहुत गंभीरता से उस पर ग्रसित हो गई थी और उसकी आंखें भी जो है वो निकलने लगी थी। And as he was close to his death, और वो मृत्यु के करीब था, the chaplain came to see him. तब वो पासबान उनसे मिलने वहां आए And he asked the chaplain these words. और उन्होंने इस तरह से उस पासबान से पूछा, He said, "Chaplain, पासबान, I'm going to die soon. मैं तुरंत मृत्यु को पाने वाला हूँ। When I meet Jesus, जब मैं यीशु से मुलाकात करूंगा, I don't have much to give him. मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं देने के लिए। I hope he won't be upset with me. मैं समझता हूँ कि आप मुझसे परेशान ना रहेंगे। I only led 14 people to Jesus Christ. मैं तो सिर्फ 14 लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह के करीब ला सका। I only led 14 people to Jesus Christ." मैं तो सिर्फ 14 लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह के पास ला सका। Stop and think about it. और उसके बारे में जरा रुक कर सोचें। A man with leprosy, एक व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित है a man who was terribly sick, और जो भयंकर रूप से बीमार है, 2 years, 2 साल God used him to draw 14 people to Jesus Christ. परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया कि 14 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब ले आए। A passion for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जुनून या दीवानगी। Tonight, there are some of us in this conference. आज हमारे बीच में इस महासम्मेलन में कुछ लोग हैं, We have no sickness. हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, We have all the wisdom. हमारे पास सारी बुद्धिमत्ता We है, have all the talent. हमारे पास सारे हुनर हैं, But tonight, if God looks at you, लेकिन आज परमेश्वर आपको देखता है। there are some of us saying, "God, I have not even shared the good news with one person." और कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने एक जन से भी नहीं कहा हूँ सुसमाचार अभी तक। How can I stand firm? मैं कैसे दृढ़ खड़ा रह सकता हूँ How can I strive for the gospel? और सुसमाचार के लिए मैं कैसे जूझ सकता हूँ। I need to have a passion for Jesus Christ. मेरे दिल में वो दीवानगी, वो जुनून प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। And I need to have a passion for those who are lost without Jesus Christ. उनके लिए भी जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी दीवानगी होनी चाहिए। I pray that tonight God will put that passion in each one of our hearts. और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन के हृदय में ऐसा एक जुनून दे। Lesson number 2. दूसरी पाठ जो हम सीखते हैं, Epaphras was not only a man of passion, ना केवल एक व्यक्ति था जो जुनून से भरा हुआ था, he was a man of prayer. वो प्रार्थना पुरुष था। Look with me at Colossians chapter 4, और कुलोसियों 4थे अध्याय में आप देखिए verse 12. 12वें आयत में, It's one of the most beautiful verses of prayer in all of the Bible. और बाइबल में सबसे उत्तम जो है प्रार्थना के विषय में लिखी हुई बात है। यहाँ In this one verse, इस एक आयत में there are 4 incredible lessons of prayer that I learned. 4 अतुलनीय बातें हैं जो सीखी मैंने यहाँ पर। Let me read that verse for you. मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। Epaphras, who is one of you and a servant of Jesus Christ, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. यहाँ लिखा है, एपफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो।
How can I stand firm? How can I strive for the gospel? मैं किस तरह दृढ़ बना रह सकता हूँ और सुसमाचार के लिए मैं तत्पर रह सकता हूँ। I can do that when I am a man of prayer, when I am a woman of prayer. हम ये तब तो संभव हो सकता है जब मैं एक प्रार्थना पुरुष या प्रार्थना महिला हूँ। 4 lessons on prayer. 4 सीख जो हमको प्रार्थना में जो मिली है। Number 1, पहला, Epaphras was praying continually. और एपफ्रास जो है निरंतरता से प्रार्थना करता था। Note what the Bible says. बाइबल क्या कहती है? He is always praying. वो हमेशा सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करने प्रयत्न करता है। He is praying continually. वो निरंतरता से प्रार्थना कर रहा है। Lesson number 2, दूसरी सीख जो है, he is praying fervently. और वो पूरे मन से ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है। Look at that verse again. उसमें जरा गौर करें। He is always praying. वो हमेशा प्रार्थना कर रहा है He is wrestling and praying. और वो लगनशीलता से प्रार्थना कर रहा है He's praying continually. और वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है He's praying fervently. और वो लगनशीलता से कर रहा है। Thirdly, he is praying personally. और वो व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना कर रहा है। Go back to that verse again. और उस आयत में पुनः आए। He is always praying. वो हमेशा प्रार्थना कर रहा है। He is wrestling and praying. वो लगनशीलता से प्रार्थना कर रहा है। And he is praying for you. वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Praying continually. लगातार प्रार्थना कर रहा है। Praying fervently. और जो है लगनशीलता से प्रार्थना कर रहा है। Praying personally. और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहा है। And fourthly, praying specifically. और जो है व्यक्तिगत स्पष्ट रूप से प्रार्थना कर रहा है। He is always praying. जो है वो हमेशा प्रार्थना कर रहा है। He is wrestling and praying. वो लगनशीलता से प्रार्थना कर रहा He है। is praying for you. वो आपके लिए व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना कर रहा है। And what is he praying for? और वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? That you stand firm in all the will of God, mature and fully assured. ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में खरे उतरो, इसलिए और परिपक्व बनो। Oh, Epaphras was a man of prayer. एपफ्रास एक प्रार्थना पुरुष था। And I want to tell you this evening that one of the most powerful weapons in missions is prayer. और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सबसे सामर्थ्यशाली हथियार मिशन में यदि है तो वो है प्रार्थना। For me to stand firm, for me to strive for the gospel, there needs to be fervent prayer. और हमें पूरी लगनशीलता से प्रार्थना चाहिए कि हम दृढ़ बने रहें और जो है हम अग्रसर रहें मसीह के काम में। Over the last several years, विगत कई वर्षों से I've had the joy of traveling to the Garo Hills in Meghalaya quite often. और मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेघालय के गारो पहाड़ियों में मैं सुधि ले सकूं। You know, the Garo people, they came to the Lord Jesus Christ because of 2 men. और आप जानते हैं गारो समुदाय के लोग मसीह यीशु में कैसे आए? 2 व्यक्तियों के कारण। The first 2 Garos who accepted Jesus Christ were Omed and Ramke. एंड उमेद और राम के करके व्यक्ति थे जिन्होंने पहले 2 व्यक्ति जो प्रभु यीशु को स्वीकारे। Omed was the uncle and Ramke was his nephew. और जो भांजा और जो अंकल चाचा थे वो लोग। They accepted the Lord in about 1863. और 1863 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। They were baptized in the month of February 1863. 1863 में फरवरी के माह में उनका बपतिस्मा हुआ। After they were baptized, they were discipled by an American missionary by the name of Miles Bronson. माइल्स ब्रॉन्सन करके अमेरिकी मिशनरी थे। उनके बपतिस्मा देने के बाद वो वहां पे जो है विश्वासी के रूप में आए। But ever since they gave their heart to Jesus, they want to go back to the Garo people. और जब से उन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो चाहते थे कि वो गारो समुदाय के लोगों के बीच में वापस जाएं। They told Mr. Miles Bronson, "Sir, please send somebody to the Garo people." और वो हमेशा उस मिशनरी सर से कहते थे कि हमको वहां गारो समुदाय के लोगों के बीच में मिशनरी भेजें। But nobody was going.
और कोई नहीं जा रहा था वहां मिशनरी के रूप And में। Miles Bronson did not want to let these two young men go because he loved them and he was discipling them. और माइल्स जी यही चाहते थे कि ये लोग जो है इनको छोड़कर, जो दो शिष्य बड़े मुश्किल से मिले हैं, वो छोड़ के इनसे दूर हो जाएं। But one day, both this uncle and nephew said, "Sir, we can't stay with you anymore. We have to go back to the Garo people." And they went to a place called Rajasimla in the Garo Hills. फिर चाचा भतीजे ने मिलकर कहा कि अब हम और नहीं रुक पाएंगे, और गारा शिमला करके जो स्थान पर वो दोनों जो है निकल पड़े मिशनरी के रूप में। When they came to Rajasimla, जब वे राज शिमला में पहुंचे, for 2 years, no Garos accepted Jesus Christ. 2 साल तक कोई भी गारो समुदाय से व्यक्ति ने यीशु को स्वीकारा नहीं। But this uncle and nephew, ये चाचा और भतीजे, they used to be a cotton tree right in Rajasimla, cotton tree. वहां पर एक कपास का पेड़ हुआ करता था। They would hug that cotton tree उस कपास के पेड़ को वो लिपट जाते and they would pray, और वो प्रार्थना करते, "Lord, like the cotton bursts, और प्रभु जैसे कपास फूटते हैं, may the gospel burst and go all around the Garo Hills." सुसमाचार जो है एकदम फटे उसके फल की तरह और बिखरे सब जगह गारो पहाड़ियों में। For 2 years, 2 साल they hugged that tree and said, "God, let the cotton pop and let all the Garos come to Christ." वो इसी तरह लिपट के उस कपास के वृक्ष से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु इसके तरह फटे, यहाँ गॉस्पेल बटे लोगों में। 40 years later, 40 साल बाद 90% of the Garo people came to Jesus Christ. गारो समुदाय के 90% लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए। More than 1 million people, right? और लगभग 10 लाख लोग करीब हो गए। One uncle, one nephew, और जो है एक चाचा, एक भतीजा, holding on to God और परमेश्वर को थामे हुए and saying, "God, like the cotton pops, you do what it takes. Let the Garos come to Jesus Christ." और जैसे जो कपास के कणकें फटते के उठती हैं, वैसे ही प्रभु ये गारो समुदाय में तेरा सुसमाचार फट जाए, ऐसी प्रार्थना करने लगे। And tonight, God is looking for uncles and nephews, brothers and aunties all across this particular country who would cry out to him and say, "God, would you please save my nation?" आज रात परमेश्वर ऐसे ही लोगों को, चाचा भतीजे भाई बहनों और सबको देखता है जो इस तरह से, इस जुनून से प्रार्थना कर सके परमेश्वर से अपने राष्ट्र के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए। Epaphras was a man of passion for Jesus Christ. एपफ्रास जो है एक जुनून से भरा हुआ व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह के लिए। Epaphras was a man who was a man of prayer. और एपफ्रास प्रार्थना पुरुष था। Thirdly, Epaphras was a man who was willing to pay a price for his commitment to Jesus Christ. और एपफ्रास एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था अपने मसीह यीशु के प्रति प्रतिबद्धता के चलते। When you hear the stories of IEM missionaries, they all paid a huge price for their commitment to Jesus Christ. IEM मिशनरियों की यदि आप गाथा को सुनेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अपने विश्वास की कीमत चुकाई है उन्होंने। To stand firm and to strive for the gospel, we need to be a people who are willing to pay a price. और जहां मजबूत दृढ़ बने रहना है और उस सुसमाचार के कार्य में बढ़ना है, तो हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। Turn with me in your Bible to the book of Philemon. और फिलेमोन की पुस्तक में आ जाएं तो पत्री में। And as you turn with me to the book of Philemon, और जैसे ही फिलेमोन की पुस्तक में आप आते हैं मेरे साथ, remember what I told you. जरा याद करें मैंने आपको क्या बताया। Epaphras was the instrument that God used to establish the church at Colossae. और एपफ्रास वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कलीसिया बनाने के लिए कोलोसिया में। When the church had problems, जब कलीसिया में समस्याएं बढ़ गई, what did Epaphras do? तो अब प्रेरितों ने क्या किया? What did Epaphras do? एपफ्रास ने क्या किया? He went looking for the apostle Paul. वो पौलुस को खोजता हुआ निकल पड़ा। And what happened as he went to look at the apostle Paul? और तब जब पौलुस को वो खोज के निकल पड़ा तो क्या हुआ? Philemon verse 23. और फिलेमोन के 23 पे लिखा है, Paul is writing, Epaphras,
my fellow prisoner in Christ sends you greetings. और जो है मेरे साथ सहकैदी है जो है एपफ्रोदितुस करके जो वहां कह रहा है। You see, Epaphras is now a fellow prisoner with Paul. और पौलुस के साथ वो सहकैदी बना हुआ है, वो जो है बंदी गृह में। Why did he become a fellow prisoner? क्यों वो पौलुस के साथ सहकैदी बन गया है वहां? Because of the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण। Because of his desire of serving the Lord Jesus Christ. क्योंकि उसके अंदर की वो तीव्र इच्छा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए थी। Men and women who will stand firm. और प्रभु के लोगों कोई भी दृढ़ नहीं रह सकता। Men and women who will stand firm and will strive for the gospel. वो व्यक्ति जो दृढ़ रहेंगे और सुसमाचार के लिए अग्रसर रहेंगे, are always willing to pay a price. वे हमेशा एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। I put down 2 words in my notes and I'd like to pass them on to you. और 2 नोट जो मैंने लिखे हुए वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। Number 1, पहला, Epaphras made sacrifices. और जो है एपफ्रोदितुस ने त्याग किया। He did not need to go to Paul, but he went. उसको पौलुस के पास जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गया। He sought out Paul. और उसने पौलुस को खोजा। He made sacrifices for the sake of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने त्याग और बलिदान किया। Secondly, he was willing to suffer for Jesus Christ. और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पीड़ा उठाने के लिए तैयार था। He not only sacrificed for Jesus Christ, उसने ना केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग किया, he suffered for Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाया। He became a fellow prisoner with Paul for Jesus और वो Christ. पौलुस के साथ जो है एक जो है कैदी बन गया। Oh, you see, men and women who stand firm and strive for the gospel are willing to pay a price, a huge price for their commitment to Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके चलते प्रभु यीशु के लोग या महिला जो भी हो, उसमें वो उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है और वे उसके लिए तत्पर रहते हैं। Several months ago, कई महीने पहले I watched a Christian film. मैंने एक मसीही फिल्म देखी। It was called The Insanity of God. उसको कहा गया Insanity of God करके नाम था उसका। And in that film, they tell a story about a man called Dmitry in Russia. और उसमें एक व्यक्ति जो डिमिट्री नाम का था, रशिया रूस का था, उसके व्यक्ति के बारे में बताया गया। Now, these were times when there was no freedom to share the gospel in Russia. वो समय था जब रूस के अंदर सुसमाचार के लिए प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। What did Dmitry do? डिमिट्री ने क्या किया? He started to teach the Bible to his sons. उसने अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाना सिखाया। And his sons started to live as believers. और उनके बच्चे एक सही विश्वासी जीवन जीने लगे। The neighbors began to look at his sons. और आसपास के लोग उनके बच्चों के जीवन और उनकी शैली को देखने लगे। And they said, how wonderful this man's sons are. We wish our children could be like that too. और वो कहने लगे कि ये डिमिट्री के बच्चे कितने अद्भुत हैं, अरे ऐसे हम तो चाहते हमारे बच्चे भी बन जाएं। So they came to Dmitry and said, Dmitry, can you teach the same thing you're teaching your sons to our sons also? तो वे आकर के निवेदन करने लगे कि डिमिट्री जी, आप मेरे बच्चों को भी वो सब शिक्षा दीक्षा देंगे जो आप अपने बच्चों को देते हैं। So Dmitry had a Sunday school now. Children were coming and Dmitry was teaching them about Jesus. तो डिमिट्री को अब अवसर मिल गया कि संडे स्कूल पढ़ाए और बच्चे उसके पास उमड़ने लगे और बच्चों को वो परमेश्वर के वचन से सिखाने लगे। Then the older people said, we also want to know. So Dmitry now had a church in his house. He was now leading a house church. तब बुजुर्ग लोग कहने लगे हम भी सीखना चाहते हैं, और अब घर में कलीसिया का रूप लेने लगी उसका घर। And one day there were about 100 people in his house and Dmitry was teaching them the Bible. और एक बार करीब 100 लोग उसके घर में थे और बाइबल की शिक्षा तब डिमिट्री दे रहे थे। And all of a sudden the door was broken open. और अचानक जो है वहां का दरवाजा तोड़ा गया। And there was the Russian guard. और रशियन सैनिक वहां आ गए, गार्ड आ गए। They pulled Dmitry and they took him away to prison. और डिमिट्री को वहां से वो घसीटते ले गए बंदी गृह में। And they tortured him terribly. और उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी वहां पर। They beat him terribly.
और बहुत ज्यादा पीटा उसको वहां। And they said, you need to turn your back upon Jesus Christ. और उन्होंने कहा कि तुझे होना चाहिए कि अपना पीठ प्रभु यीशु मसीह की ओर करना होगा। After torturing him for many hours, और कई घंटों तक उसको यातना पे यातना देने के बाद they threw him into a prison cell. और उसको एक प्रिजन के सेल में इकाई में अंदर कर दिए। His whole body was broken and bruised. और उसके शरीर पूरा लहू लुहान था और घायल था। But Dimitri, with great difficulty, stood up. लेकिन डिमिट्री बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। And he stood at the door of his prison cell. और अपने जो बंदी गृह की इकाई के दरबार पे खड़ा हो गया। And he lifted up his hands to heaven. और उसने स्वर्ग की ओर अपने हाथ ऊंचे किए। And he started to sing about Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गीत गाने लगा। There were 1,500 prisoners in that prison. उस बंदी गृह में 1500 बंदी थे। They all started to shout bad words at Dimitri. और डिमिट्री को वो बुरा भला कहने लगे। They started to throw dirty things at Dimitri. डिमिट्री के ऊपर जो है गंदे चीजें फेंकने लगे। But every single day, और हर प्रतिदिन they would torture him. उसको प्रताड़ित करते वो The लोग। guards would beat him. और गार्ड्स आके उनकी पिटाई करते थे सैनिक। But Dimitri would stand up, raise his hands up to heaven, and he would sing about God. और डिमिट्री हाथ को ऊंचा कर कर परमेश्वर को जो है धन्यवाद के गीत गाता था। This went on for 17 years. ये 17 साल तक ये क्रम चलता रहा। At the end of 17 years, 17 साल जब बीत गए समाप्त हुए, one day they dragged a lady past Dimitri's cell. और वहां डिमिट्री के सेल से एक सामने से एक महिला को ले गए वो लोग। And they took the lady to the other room, and Dimitri could hear the lady screaming and shouting until finally her voice went quiet. और उस महिला को खूब प्रताड़ित किया। डिमिट्री उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनता रहा जब तक वो आवाज शांत नहीं हो गई। And then they finally came to Dimitri and said, Dimitri, we killed your wife today. Do you still want to believe in Jesus Christ? और उन्होंने डिमिट्री से कहा, आज तुम्हारी पत्नी को हमने खत्म कर दिया है, क्या अब भी तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे? After 17 years of torture, 17 साल की प्रताड़ना के बाद Dimitri's heart was broken. डिमिट्री का हृदय टूट गया। He said to the guards, I'll see you tomorrow. I'll tell you tomorrow my decision about following Jesus Christ. और उन्होंने गार्ड से कहा कि मैं तुमको कल बताऊंगा अपना निर्णय प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलता रहूंगा या नहीं। When the guards came back the next day, और दूसरे दिन जब फिर वहां के पहरुए वहां पर वापस आए, Dimitri was praising God. डिमिट्री परमेश्वर को स्तुति दे रहा था। And they were angry. और वे गुस्से हो गए वहां के They said, पहरुए। how can you praise God? और वो कहने लगे, तुम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो अब भी? Dimitri said, last night I was crying out and praying. और डिमिट्री ने कहा, पिछली रात में प्रार्थना कर रहा था रोकर। And when I was praying, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, God opened my ears. परमेश्वर ने मेरे कानों को खोल दिया। And I could hear a prayer meeting in my house. और मैं एक प्रेयर मीटिंग को अपने घर में सुन सकता था। I could hear my wife praying. मैं अपनी पत्नी को वहां प्रार्थना करते सुन सकता I था। could hear my sons praying. मैं सुन सकता था मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। My wife is alive. मेरी पत्नी जिंदा है। The guards were so angry. और वो पहरुए इतने गुस्सा हुए, They didn't know what to do. वे नहीं जानते कि क्या करें। They dragged Dimitri out of the cell. और डिमिट्री को उसके इकाई से खींच के बाहर निकाला। And they said, today we are going to kill you. और उससे कहा कि आज हम तेरा अंत कर देंगे। And that day something amazing happened. और उस दिन कुछ एक अद्भुत काम हुआ। 1,500 prisoners stood at their cell door. और 1500 कैदी लोग अपने बंदी गृह की इकाई के द्वार पे खड़े हुए। They put their hands up to heaven. उन्होंने अपने हाथ आसमान की ओर ऊंचा किए। And they started to sing the song that Dimitri sang for 17 years. और वे सब मिलकर एक सुर में गाने लगे वो गीत जो डिमिट्री 17 साल से वहां कैदी बतौर गाता आ रहा। And the guards began to see the power of the gospel of Jesus Christ. और वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के संदेश की सामर्थ्य को वहां के पहरुए देखने लगे। Men and women who want to stand firm.
और जो व्यक्ति प्रभु यीशु में दृढ़ रहना चाहते हैं, men and women who strive for the gospel, और जो महिला और पुरुष जो सुसमाचार के लिए प्रयत्नशील हैं, are people who are willing to pay a price. वो ऐसे लोग हैं जो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। Number one, a passion for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जुनून या दीवानगी। Number two, men and women of prayer. दूसरा, पुरुष या महिला, वो प्रार्थना पुरुष या प्रार्थना महिला। Number three, men and women who are willing to pay a price for the gospel of Jesus Christ. और महिला और पुरुष वो जो कीमत चुकाने को तैयार हैं सुसमाचार के खातिर। Number four, men and women who are persistent in their walk of faith. अपने विश्वास में जो है स्थिरता से चलने वाले हैं, लगातार चलते जाने वाले लोग हैं। Look with me again at Colossians chapter 4. कुलोसियों 4 अध्याय में आ जाए। As you look at verse 13, Paul says, उसके 13वें आयत में देखें, I vouch for Epaphras. He is okay. Let me read that verse. I vouch for Epaphras. He's working hard for you and for those in Laodicea and Hierapolis. मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लिदोकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। Two words about Epaphras. एपफ्रस के बारे में दो बातें। Number one, a man of deep commitment. एक बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्ति के रूप में उसको देखते हैं। Number two, a man who is consistent. और जो लगातार जो है अपने उसको बनाए रखा हुआ है। You know, this is a man who is consistent in his walk of faith, a man of deep commitment, but a man who is deeply consistent in his walk of faith as well. अपने विश्वास में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति, हमेशा बना हुआ व्यक्ति है। You know, to be a person who stands firm and strives for the gospel, you need to be a person who is persistent and who doesn't give up, who is steadfast in your walk with Jesus Christ. और बड़ी दृढ़ता और अटलता वाला व्यक्ति रहे और प्रतिबद्धता रहे और बरकरारता उसमें बनी रहे, ये चाहिए है जो विश्वास में बने रहने वाले व्यक्ति जो स्थिर रहें और जो है अग्रशील रहे। One of the privileges of my own life was to, for a short period, about 8.5 years, pastor the Carey Baptist Church. और पास्टर था मैं कैरी बैप्टिस्ट चर्च का 8.5 साल के लिए। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय था। Church of phenomenal history, established by none other than Dr. William Carey itself. और डॉक्टर विलियम कैरी के द्वारा संस्थापित की गई कलीसिया। You know the stories of William Carey. सर विलियम कैरी के बारे में आपको पता होगा इस कहानी आपको। 7 years, William Carey preached in Bengal 3 times every day. और 7 साल तक 3 बार लगातार वो प्रचार करता रहा बंगाल में। दिन में 3 बार प्रचार करते थे। Not one person came to Jesus Christ. एक व्यक्ति भी प्रभु यीशु में नहीं आया। For 7 years. 7 साल तक। And at the end of 7 years, और जब 7 साल समाप्त हो गए, William Carey led the first Bengali convert to Jesus Christ. तब विलियम कैरी पहले बंगाली व्यक्ति को प्रभु यीशु में लेके आ सके। His name was Krishnapal. उसका नाम था कृष्णपाल। Now, what is amazing is that when Krishnapal was dying, और सबसे अद्भुत बात ये थी कि जब कृष्णपाल मरणासन पर था, somebody went to Krishnapal, तो कोई कृष्णपाल के पास पहुंचा, and they said, Krishnapal, do you still love Jesus? और उन्होंने पूछा, कृष्णपाल, क्या तुम अभी भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो? And this is what Krishnapal said. और कृष्णपाल ने यह कहा, I still love Jesus, मैं अब भी प्रभु यीशु से प्यार करता हूं, but not as much as Jesus loves me. लेकिन इतना नहीं कर पा रहा हूं जितना प्रभु यीशु मसीह मुझे किया। I still love Jesus, मैं प्रभु यीशु मसीह से अभी भी प्यार करता हूं, but not as much as Jesus loves me. लेकिन उतना नहीं कर पा रहा हूं जितना प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। It took 7 years of persistent hard work. और लगातार जो है कठोर परिश्रम करना पड़ा 7 साल तक विलियम कैरी सर। And then Krishnapal came to Jesus Christ. तब कृष्णपाल प्रभु यीशु में आने पाए। How can I stand firm? हम कैसे दृढ़ रह सकते हैं? How can I strive for the gospel? और किस तरह सुसमाचार के लिए हम अग्रसर रह सकते हैं? God, fill my heart with a passion for the things that break your heart, oh God. ओ प्रभु यीशु मसीह, अपने उस जुनून से भर दीजिए हमारे हृदय को प्रभु। Make me a man of prayer, oh God.
मुझे प्रार्थना पुरुष बना दीजिए। Enable me to be willing to pay any price in my commitment to you. हमारी प्रतिबद्धता इस हद तक हो कि हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रह सके, ऐसा हमें बना। Help me to be persistent in my walk with you, O God. और आपके साथ जो मैं चल रहा हूँ उसमें मैं बराबर दृढ़ता से बना रहूं प्रभु आप में। Lesson number 5. और पांचवी पाठ, Teach me to work in partnership with people. और लोगों के साथ साझेदारी में कार्य करने में मेरे को सिखा प्रभु। One of the things that encourages me about the IEM convention is that you have people from all across the country and the world who come together in this platform. IEM के विषय में मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब इसके कन्वेंशन आयोजन होता है तो ये भिन्न भिन्न देशों से और भिन्न भिन्न समुदाय स्थानों से लोग इकट्ठे होते आते हैं। Working in partnership together so that Jesus would be glorified. और वे साझेदारी में काम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल सके। When you look at this country of India, जब हम ये भारत देश को देखते हैं, all of you in missions know this really well. हम में से मिशन में जो लोग हैं वे इस बात को भली भांति जानते हैं। Almost 80% of India's Christians live in the south. और लगभग 80% मसीही लोग भारत के दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। 15% live in the northeastern regions. और 15% लोग जो है वो उत्तरी पूर्व हिस्से में भारत के पाए जाते हैं। And the rest of the country has about 5% of the Indian Christian populace. और बाकी जो बचे प्रदेश हैं उसमें केवल 5% मसीही लोग पाए जाते हैं। How can they be saved? वो किस तरह बचाए जा सकते हैं? They will only be saved और वे केवल बचाए तभी जा सकेंगे when the South Indian Church जब दक्षिण भारतीय कलीसिया and the Northeast Indian Church और जो उत्तर पूर्व की जो है कलीसियाएं begin to partner with one another. जब वे एक दूसरे के साथ साझेदारी में आ जाएं, When there is partnership, और जब साझेदारी बढ़ेगी, amazing things happen. तब अद्भुत काम दिखेंगे। The book of Colossians is in the Bible only because of partnership. और कोलोसियों की पत्री इसीलिए ही बाइबल में है क्योंकि साझेदारी के कारण। You know, Epaphras went to Paul. एपफ्रस जो है वो पौलुस के पास पहुंचा। He said, Paul, I need your help. और कहा, पौलुस मुझे आपकी मदद चाहिए है। I need your wisdom. मुझे आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए है। I need partnership. मैं साझेदारी चाहता हूँ। And that's why you have the book of Colossians. इसीलिए कोलोसियों की पत्री हमें मिली। What happens when we partner with people? तब क्या होता है जब हम लोगों के साथ साझेदारी करने लगते हैं? Number one, when we partner with people, पहली चीज जब हम लोगों के साथ साझेदारी करते हैं, there is supplication for our work. अब प्रार्थना होने लगती है हमारे कार्य के लिए। Listen to what Paul says. पौलुस क्या कहता है? Colossians chapter 1. कोलोसियों 1 I'm reading to you from verse 9. 9 से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। Paul is writing, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। You see, Paul is saying, I am praying all the time for you. और वहां पौलुस कहता है, मैं हर समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Why am I praying for you? क्यों मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? Ever since I heard about you, जब से मैंने आपके बारे में सुना है, I'm praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। That's what happens because of partnership. और यह तब होता है जब साझेदारी में बात आती है। There is supplication for one another. एक दूसरों के लिए प्रार्थना और विनती चल रही है। The second thing that happens because of this partnership दूसरी चीज जो साझेदारी के चलते होती है is that Paul is going to send supporters who are going to help the church at Colossae. और कोलोसियों के कलीसिया को मदद करने के लिए सहयोगी के रूप में पौलुस लोगों को भेजता है। Colossians chapter 4, कोलोसियों 4 अध्याय verse 7. उसका 7वां आयत। He says, Tychicus will tell you all the news about me. और वहां लिखा है कि तिखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। And then in verse 9, he says, he is coming along with Onesimus, our faithful and dear brother.
और 9वें आयत में फिर वो कहता उसके साथ में ने उनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई। You see, it's so beautiful how partnership helps the body of Jesus Christ. किस तरह मसीह की देह रूपी कलीसिया को साझेदारी से किस तरह की मदद पहुंचती है ये हम देखते हैं। There is supplication because of partnership. साझेदारी के चलते प्रार्थना उठने लगती है। There are प्रार्थना supporters because of partnership. सहयोगी और सहकर्मी लोग खड़े हो जाते हैं सहयोग करने हेतु। And one of the lessons that Epaphras teaches us is the need for partnership. और एक सबक जो एपफ्रोस हमें सिखाता है वो साझेदारी की जरूरत। How can I stand firm? हम किस तरह दृढ़ रह सकेंगे? How can I strive for the gospel? किस तरह हम सुसमाचार के लिए स्थिर रह When there सकेंगे? is a passion in my heart for Jesus Christ, जब मेरे दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो दीवानगी और जुनून है, when I'm a man of prayer, जब मैं एक प्रार्थना पुरुष हूँ, when I'm willing to pay any price, जब मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, when I'm persistent and I don't give up, और जब मैं पूरी लगनशीलता से लगा रहता हूँ और कर्मठ बना रहता हूँ, when I learn to work in partnership with people, जब मैं साझेदारी में एक दूसरे के साथ सहयोग करना और सीखते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। and the last lesson is this, और आखिरी जो लेसन है वो ये है, when I am consistently preparing others who will serve the Lord faithfully as well. जब हम लगातार लोगों को तैयार करते हैं जो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो सके। You know, when you come to Colossians chapter 4 and verse 17, और 4 के 17 में आ जाए यदि कोलोसियों के, तो Paul is writing about a man called Archippus. वहां पर अर्खिपुस करके व्यक्ति के बारे में पौलुस कहता है। Archippus might have been the son of Philemon. When you read the book of Philemon, you have the name of Archippus there as well. और फिलेमन का बेटा है अर्खिपुस करके हम वहां देखते हैं। Now, who is this Archippus? अर्खिपुस कौन है? Archippus is looking after the church at Colossae when Epaphras has gone to meet with the apostle Paul. और प्रेरित पौलुस से मुलाकात करने के लिए इपफ्रोस चला गया था, तब जो है वहां अखिलपुस जो है वो कलीसिया को देख रहा है। What does that teach you? ये हमें क्या सिखाता है? It teaches you that Epaphras has invested in the life of Archippus. ये दिखाता है कि अर्खिपुस के जीवन में जो इपफ्रोस ने निवेश किया, And now Archippus is standing in as the minister at Colossae. और अर्खिपुस अब जो है कोलोसियों की कलीसिया में एक सेवक बतौर खड़ा है। And one of the most important lessons for us, especially today, we're talking about this being IEM's youth-focused evening. और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज हम ये युवाओं के प्रति मीटिंग मान के समर्पित करके कह रहे थे। The challenge that IEM and all of us needs to ask ourselves is, are we investing in young people? Are we building up the second level leadership? Are we preparing men and women who would serve God more faithfully than us? IEM और हम आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि हम किस तरह आगामी पीढ़ी को बतौर जो है अगुवे तैयार कर रहे हैं और उनको लेस कर रहे हैं सुसमाचार के कार्य के लिए। You see, when Paul writes to his spiritual son Timothy in 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस दूसरे अध्याय में जो है जब पौलुस अपने पुत्र आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता है, in verse 2 he says two things to Timothy. वहां दो बात वो तिमुथियुस से कहता है। Number one, पहला, he says, Timothy, equip people. और तिमुथी लोगों को लेस कर, तू तैयार कर। And that's what we need to be doing. We need to equip people. हमें चाहिए कि हम लोगों को लेस करें, तैयार करें। I read a story a few days ago. मैंने कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी about this world famous violinist. विश्वविख्यात वायलिन बजाने वाले के बारे में। He would earn tens of thousands of dollars by just playing one time in a concert. और एक कॉन्सर्ट में जो है वायलिन बजाने के लिए उसको $10,000 मिल जाता था। One day the man said, I'm stopping playing in the concerts. और एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि अब मैं जो है कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं बजाऊंगा वायलिन। So his friends asked him, what are you going to do? तब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम क्या करोगे? He said, I'm going to teach boys and girls how to play the violin. मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि वायलिन किस तरह बजाना चाहिए। And people began to laugh at him.
और फिर लोग उसका हंसी उड़ाने लगे। You're giving up so much money. वो तुम इतना सारा पैसा गवा रहे हो You're just going to teach children. और तुम छोटे छोटे बच्चों को सिखाने जा रहे And the great violinist said, हो। और उस वायलिन वादक ने कहा, I can make all the money I want, मैं वो सारे पैसे बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, but when I die, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा my violin will go quiet. मेरा वायलिन शांत बैठा रहेगा। But when I train other young people, लेकिन जब मैं दूसरे जवान लोगों को तैयार करूंगा वायलिन बजाने के लिए, when I die, जब मैं मृत हो जाऊंगा, hundreds of violins will play. तो सैकड़ों वायलिन बज उठेंगी। You see, Paul is writing to Timothy saying, Timothy, equip others, equip others. इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि दूसरों को लेस कर तैयार कर। And secondly, Paul says, not only equip others, और दूसरी बात पौलुस जो कहता है, केवल उनको लेस और तैयार न करें, entrust to others, give them the ministry. उनको सौंपे, उनको वो जिम्मेदारी दें, दायित्व सौंपे। I think one of the challenges with some of us older pastors and ministers in the gospel, और मैं समझता हूँ कि हमारे पुराने या बड़े पासवान कलीसिया के उनके साथ एक चुनौती ये है, some of us, we like to equip people, हम चाहते हैं कि लोग लेस हो जाएं, but we never like to entrust to people. लेकिन हम कुछ सौंपना नहीं चाहते हैं। We think people are never ready, they're not so good. We keep on and on equipping them, but we need to equip and entrust leadership. हम सोचते हैं कि वो अभी तैयार नहीं है या उन लोग इतने पर्याप्त नहीं है, काबिल नहीं है, लेकिन हमें ना केवल उन्हें लेस करना है, तैयार करना, बल्कि उनको सौंपना भी है दायित्व को। As we look at Epaphras, यदि एपफ्रस को देखें तो here was a man who was preparing other people. ये ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को तैयार कर रहा था। Tonight, I want you to think about those 6 lessons as we close this particular session this evening. इस सत्र को समाप्त करने के पहले उस 6 सीख या सबक पाठ को मैं आपको बताना चाहूंगा। How can I stand firm? मैं किस तरह दृढ़ बना रह How can I सकता हूँ strive for the gospel? और सुसमाचार के लिए मैं कैसे अग्रसर हो सकता हूँ। Number 1, पहला, God, fill my heart with a passion for those that are lost. प्रभु मेरे हृदय को उस जुनून से भर दीजिए उन लोगों के लिए जो खोए हुए हैं। Number 2, God, make me a man, make me a woman of prayer. हे परमेश्वर, मुझे जो है प्रार्थना पुरुष बना दे, प्रार्थना महिला बना दे। Number 3, Lord, help me to be willing to pay any price for you. तीसरी बात, प्रभु आपके खातिर कोई भी कीमत चुकाने को मैं तैयार रहूं, ऐसा मुझे बना। Number 4, God, make me a man who is persistent, who will not give up easily. और प्रभु मैं पूरी लगनशीलता से कर्मठ बना रहूं प्रभु, और आसानी से मैं हार ना मानूं। Number 5, help me to be a man of partnership, learning to work with people. और मुझे मदद कर कि मैं साझेदारी के महत्व को समझूं और दूसरों से भी सीखूं। And number 6, Lord, let me prepare others, let me equip and entrust ministry into others' lives. छठवीं बात प्रभु जी की मैं दूसरों को लेस और तैयार कर सकूं और दूसरों को दायित्व सौंपने वाला बन सकूं। Tonight, the Lord is speaking to you as He's speaking to me. जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा, आपसे भी प्रभु बात कर रहा। And He's calling us tonight. और वो आज हमें पुकार रहा है। He says, I want you to stand firm. हम चाहते हैं कि हम दृढ़ रहें। I want you to strive for the gospel. मैं चाहता हूं कि सुसमाचार के लिए आप अग्रसर रहें। Will you come to Him tonight? क्या आप उसके करीब आएंगे आज रात? And will you say to Him, Lord, just like you used Epaphras, और आप ऐसा कहेंगे कि एपफ्रस को जैसे आपने इस्तेमाल किया प्रभु, Lord, would you use me? प्रभु क्या आप मुझे भी इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर? Take my life, use me for your honor, God. मेरे जीवन को ले लीजिए और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। Every eye closed, every head bowed. हर एक सिर झुक जाए और हर एक आंख बंद रहे। Let's pray together. हम एक साथ प्रार्थना करें। As every eye is closed and every head is bowed tonight, आज जब सब आंखें बंद हैं और सारे सिर झुके हुए हैं, let the Holy Spirit search you this evening. पवित्र आत्मा आपको टटोलने पाए, देखने पाए। Is there a passion in your heart for Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके दिल में वो जुनून है क्या? Are you a man of prayer, a woman of prayer? क्या आप प्रार्थना पुरुष या प्रार्थना महिला हैं क्या?
Are you willing to pay a price in your commitment to Jesus Christ? आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते कीमत चुकाने को तैयार हैं क्या? Have you been persistent in your walk of faith? क्या आप अपने विश्वास के चाल में क्या आप लगातार वैसे लगनशील बने थे, प्रतिबद्ध Do you थे? enjoy working in partnership with people? क्या आपको हर्ष हुआ है साझेदारी का लोगों के साथ कार्य करने में आत्मिक जीवन में? Are you preparing others for the ministry? क्या दूसरे लोगों को आप तैयार और लेस कर रहे हैं सेवकाई के लिए? Is God speaking to you tonight about some area of your life? यदि परमेश्वर आपके जीवन के किसी भी पहलू के बारे में आपसे बात कर रहा हो आज रात, You can come to Him tonight तो आप उसके करीब आ सकते हैं आज and रात। say, Lord, here am I. और ऐसा कहे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, Use me for your glory. आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें। Father, we want to thank you this evening for the life of Epaphras. और पता परमेश्वर हम एपफ्रास के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, a man of passion. वो जो जुनून से भरा हुआ व्यक्ति, Lord, a doulos, a dependable man, a man who had a desire for those who are lost without Jesus Christ. एक सेवक व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति और जो खोए हुए लोगों के प्रति जो है पूरे उदार से भरा हुआ व्यक्ति। Lord, a man of prayer, अब प्रार्थना पुरुष प्रभु, praying continually, fervently, personally, Lord, praying intelligently. और लगातार जो है पूरी बुद्धिमता से और जो पूरे दिल से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। Lord, a man willing to pay a price for you, God, willing to pay any price in his commitment to Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रतिबद्धता के चलते कोई भी कीमत चुकाने को हर समय तत्पर और तैयार। A man persistent, not willing to give up in his walk with Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिबद्धता है और जो है कर्मठ बना हुआ है और one who उसकी learned to बरकरारता partner with, one who learned to partner with people. और जो लोगों के साथ साझेदारीपन को सीखा है और साझेदारी करना चाहता है। And Lord, one who was preparing others. और प्रभु ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तैयार कर रहा है। Lord, we want to stand firm. प्रभु हम चाहते हैं कि हम दृढ़ बने। We want to strive. हम चाहते हैं कि हम अग्रसर रहें। Lord, today you know us better than we know ourselves. और प्रभु यीशु आप हमको बेहतर जानते हैं, हम अपने आप को जाने इससे बेहतर आप जानते हैं। If there are areas in our life where we need to come before you today in confession, we ask, oh God, that you would bring us to that place of brokenness. और प्रभु यीशु हम वह जरूरत है प्रभु, हम आते हैं आपके करीब और वो चीज को अंगीकार करते हैं, स्वीकारते हैं प्रभु जो हमारे जीवन में जो जहाँ ये बिखराव है इस चीज को लेकर। Lord, be glorified in our lives and through our lives. प्रभु यीशु हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाने पाए। We ask in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Amen.